I am speaking from Newton Study. My name is P.N. Singh. My qualification is MSc in Mathematics from H.D. Jain College, Ara. I am going to teach physics of class 9th. Today topic is how does the gravitational force acting between a stone and the earth produce motion in the stone and not in the earth. How does the gravitational force acting between a stone and the earth produce motion in the stone and not in the earth? It means that स्टोन और अर्थ के बीच जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो स्टोन में मोशन प्रोड्यूस होता है, जबकि अर्थ में जो है मोशन प्रोड्यूस नहीं होता है या अर्थ के मोशन को हम फील नहीं करते हैं। व्हाई? When same force is applied by the stone and the earth, but the motion is produced in the stone, but the motion does not produce in the earth. Why? यदि स्टोन के द्वारा भी अर्थ पर उतना ही फोर्स अप्लाई किया जाता है जितना कि अर्थ स्टोन पर फोर्स अप्लाई करती है, लेकिन जो अर्थ के द्वारा स्टोन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है उस फोर्स से स्टोन में मोशन प्रोड्यूस हो जाता है और सेम फोर्स स्टोन के द्वारा अर्थ पर अप्लाई किया जाता है तो अर्थ में जो है मोशन प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? व्हाई? दिस topic is related to chapter gravitation. How does the gravitational force acting between a stone and the earth produce motion in the stone and not in the earth? The gravitational force of attraction. The gravitational force of attraction produces acceleration in both the interacting bodies. Gravitational force जो है दोनों बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। The acceleration produced in a body इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस बॉडी के मास का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन उसके मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि फोर्स सेम है और मास इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। यदि मास डिक्रीज करता है और फोर्स वहीं सेम है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। इट मीन्स दैट यदि फोर्स सेम है मास इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। यदि मास डिक्रीज करता है तो उसी सेम फोर्स के लिए एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए स्मॉल एंड ए बिग बॉडी will produce more acceleration
in the smaller body, which is clear. The following example: the gravitational force acting between a small and a big body will produce more acceleration in the smaller body. कहने का मतलब है कि दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो स्मॉलर बॉडी पर जो है लार्जर बॉडी के रिस्पेक्ट में सेम ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस करेगा। स्मॉलर बॉडी में जो है ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। विच इज क्लियर। द फॉलोइंग एग्जाम्पल: वी नो दैट gravitational force is equal to gravitational constant into mass of one body into mass of second body by square of the distance between them. G का वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 11, mass of a body, mass of a stone 1 kg, mass of earth 6 into 10 to the power 24, और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 into 10 to the power 6 का होल पावर। We find after calculation the value of F is equal to 9.8 Newton. I have already taught to find gravitational force is equal to 9.8 Newton. Acceleration produced in the stone. Acceleration produced in the stone. Force by mass. Force, gravitational force जो है 9.8 Newton. Mass of a stone is equal to 1 kg. Hence, acceleration is equal to 9.8 meter per second square. Acceleration produced in the earth. Gravitational force is equal to 9.8, mass of earth 6 into 10 to the power 24 is equal to 1.6 into 10 to the power minus 24 meter per second square. The acceleration produced in the stone is larger than the acceleration produced in the earth. अर्थ के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके रिस्पेक्ट में स्टोन में जो 1 kg का स्टोन है उसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन जो है लार्जर है, जिसके चलते जो है स्टोन जो है मोशन में अपीयर होता है, प्रतीत होता है। आफ्टर दिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में स्टोन के द्वारा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में स्टोन के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। हाफ G का वैल्यू 9.8, T का वैल्यू 1 सेकेंड, हेंस 4.9 मीटर। इट मीन्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स यदि स्टोन पर अप्लाई किया जाता है तो वह 1 सेकेंड में 4.9 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अर्थ। अर्थ के द्वारा 1 सेकेंड में जो स्टोन के द्वारा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जाता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा डिस्टेंस कवर इक्वल टू 1/2
एक्सेलरेशन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 टाइम इजकल टू 1 सेकेंड. Such this we find that distance is equal to 0.8 into 10⁻⁻24. इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो डिस्टेंस स्टोन के द्वारा कवर किया जाता है और जो डिस्टेंस अर्थ के द्वारा सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डिस्टेंस कवर किया जाता है, वह स्टोन के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, एक्सट्रीमली लेस है. Thus, the distance 0.8 into 10⁻24 meter is extremely smaller as compared to 4.9 meter. That is why we do not see the earth rising towards the stone. इस तरह से हम जो है अर्थ के मोशन को फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो अर्थ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है या जो डिस्टेंस कवर करती है वह स्टोन के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है. और वही सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो स्टोन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में लार्जर होता है, जिसके चलते हम स्टोन के मोशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, स्टोन के मोशन को हम देख पाते हैं. दोनों के द्वारा सेम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जाता है, लेकिन स्टोन का मास बहुत कम होने के कारण उसके मोशन को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं. उसमें जो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन होता है उसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं. लेकिन अर्थ का मास बहुत हेवी होने के कारण इसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर बहुत कम होता है, निग्लिजिबल, एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल, ड्यू टू विच we cannot observe the motion of the earth and produce acceleration. Now I stop my teaching. I will see you in next video with new topic. At last I say you must subscribe and like Newton Study. Thank you.